का अंत। शतावट का चरम। रण क्षेत्र में योद्धाओं, यीशु मसीहा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers who are watching this program. एंजल टीवी के सभी दर्शकों जो इस कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सबके लिए खास स्वागतम। This program is called Prepared to Meet the End Times. यह कार्यक्रम अंतिम समय के लिए तैयार। Its purpose is to make us aware and to prepare for the end times. और इसके मकसद ये है कि अंतिम समय के बारे में जानकारी दें और आपको तैयार करें। The topic of today's message is called Watch. आज की संदेश की शीर्षक है जागते रहो। Often when we hear the word watch, we relate to Jesus' word in Matthew 25 verse 13. ज्यादातर जब इस शब्द को सुनते हैं जागते रहो, तब प्रभु यीशु मसीह की वो वचन याद आता है मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 10 पद में। It says, Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना घड़ी को। So the watchfulness was to be prepared and to be ready for the return of Jesus Christ. और जागते रहना इसलिए है कि प्रभु यीशु मसीह की वापसी के लिए हम अपने आप को तैयार करने पाएं। I want to show you a different angle to watch. आज जो है जागते रहने की दूसरे पहलू मैं आपको बताना चाहता हूँ। The first one is watch how God watches over His word to perform it. पहला जागते रहना कि ऐसे जागृत रहना जैसा यहोवा अपने वचन पूरा करने के लिए जागृत रहते हैं। Let's turn to the book of Jeremiah chapter 1 verse 12. आइए हम जो यिर्मयाह उसके पहला अध्याय 12 पद को खोलें। This version is the HCSB version. और ये अंग्रेजी की जो अनुवाद जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो HCSB अनुवाद। The Lord said to me, You have sinned correctly, for I watch over my word to accomplish it. तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। If we choose not to be familiar with how God will perform His word, अगर हम परमेश्वर अपने वचन को कैसा पूरा करेंगे करके उसके बारे में परिचित ना हो, then we miss the target. तब हम अपने लक्ष्य को खो देते हैं। We miss to move together in God's plan. हम परमेश्वर की योजना के साथ साथ चलने में चूक जाते हैं। Do we understand how we ought to move with God's plan? क्या हम समझते हैं कि कैसा हम परमेश्वर की योजना के साथ साथ चलना है? Is it not really, or we wait and see, or we give up trying to know? कि हम जो है इंतजार करके देखते हैं या हम हार मान लेते हैं? If this is our perception, then we really don't understand the signs of the time. अगर यही हमारे दृष्टिकोण रहेगा तो समय की विज्ञान को हम समझ नहीं पाएंगे। I pray and hope that this message will help you to decide. मैं प्रार्थना करता हूँ, आशा करता हूँ ये संदेश आपके लिए मदद करे निर्णय लेने के लिए। Before us all is a convergence of pathways into God's plan. हमारे सामने परमेश्वर की योजना के साथ जुड़ने वाली एक मार्ग है। Correct understanding will finally help all of us to come to the conclusion of God's plan that makes sense. सही समझ हम सबके लिए मदद करता है कि परमेश्वर की योजना की अंतिम परिणाम कैसे होगा, वो हमसे कैसे मतलब करता है जानने के लिए। The intent of this message is for all listeners to awake and be aware how God's word will unfold on days ahead. ये संदेश का उद्देश्य ये है हम सबको जागृत करने पाएं ताकि कि परमेश्वर की इच्छा कैसे हमारे जीवन में प्रकट होता है हम देखने पाएं। But aside from just hearing the word, we must commit to be doers of the word. हम सिर्फ वचन को सुनने वाले से बेहतर परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाले लोगों के समान समर्पण करना होगा। Let us turn to the book of Daniel chapter 9 and read verse 20 to 23. आइए दानियेल की पुस्तक 9 अध्याय
20 से लेकर 23 पद तक पढ़ेंगे। While I was speaking, praying, and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my petition before Yahweh my God concerning the holy mountain of my God, while I was praying, Gabriel, the man I had seen in the first vision, came to me in my extreme weariness about the time of the evening offering. He gave me this explanation: Daniel, I have come now to give you understanding. At the beginning of your petition, an answer went out, and I have come to give it, for you are treasured by God. So consider this message and understand the vision. इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएल जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसमें मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ को अन्नबलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बुझ ले। The word says today, I have come now to give you understanding. परमेश्वर के वचन आज हमसे ये कहता है, मैं इसलिए आया हूं ताकि आप लोग को समझ की बुद्धि दे सकूं। In response, by faith, we receive it and declare our understanding to be open. विश्वास के स्वरूप उसे स्वीकार करते हैं और अंगीकार करते हैं कि हमारी समझ की आंखें खुल जाएं करके विश्वास में। Can you agree with me right now and say amen to that? क्या मेरे साथ मिलकर सहमत हो सकते हैं आमीन कहते हुए? We are all watching how the word of God's promises will unfold in our life. हम सब जागृत हैं कि ये देखने के लिए कि परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में कैसे प्रकट होते हुए आ रहा है। Let's turn to the second book of Peter, chapter 1, and read verse 20 to 21. आम जो दूसरा पत्रस उसके पहला अध्याय 20 से लेकर 21 पद तक पढ़ेंगे। First of all, you should know this: no prophecy of Scripture comes from one's own interpretation, because no prophecy ever came by the will of man. Instead, men spoke from God as they were moved by the Holy Spirit. पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। Let's turn to another scripture in the book of Acts, chapter 17, verse 10 to 13. आम एक और वचन हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 17 अध्याय 10 से लेकर 13 पद तक। As soon as it was night, the brothers sent Paul and Silas off to Berea. On arrival, they went into the synagogue of the Jews. The people here were more open-minded than those in Thessalonica, since they welcomed the message with eagerness and examined the scriptures daily to see if these things were so. Consequently, many of them believed, including a number of the prominent Greek women as well as men. But when the Jews from Thessalonica found out that God's message had been proclaimed by Paul at Berea, they came there too, agitating and disturbing the crowd. भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिराए में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यही हैं कि नहीं। सो उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतों ने विश्वास
किया। किंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बिराए में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उस्काने और हलचल मचाने लगे। You see, we can all watch and even see how God performs His word. हम सब जो है जागृत रह सकते हैं कि ये देखते हुए कि कैसा परमेश्वर अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। God is a promise keeper. परमेश्वर वायदा निभाने वाले हैं। For those who are aware, all the prophecies in the Bible are coming to pass one by one. हर एक जो इसे जानते हैं कि परमेश्वर की वायदा जो बाइबल में कहा गया है, एक एक करके पूरा होते हुए आएगा। And God is asking you to watch how He is doing this. और परमेश्वर कहते हैं कि हम जागृत रहें कि ये देखने के लिए कैसा वो कर रहे हैं। The second point about watch is how God reacts to what we do. और दूसरा जागते रहना कि ये देखने के लिए कि कैसा परमेश्वर जो हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए प्रत्युत्तर देते हैं। God is watching you how you will react to His word. परमेश्वर आप पे जागते रहते हैं कि कैसे आप उसके वचन के लिए प्रत्युत्तर देंगे। Let's turn to the book of Psalm chapter 30 and verse 7. भजन 30 उसमें 7वें पद की ओर हम खोल लें। Lord, when you showed your favor, you made me stand like a strong mountain. When you hid your face, I was terrified. हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया, तब मैं घबरा गया। David was always watching how God would respond when Israel would disobey God. दाऊद हर वक्त जागते रहता था ये देखने के लिए कि कैसा परमेश्वर प्रत्युत्तर देते हैं जब इस्राएली लोग अनाज्ञाकारी होते हैं। David was terrified to know that God hid his face. दाऊद डरता था कि परमेश्वर अगर अपने मुंह को छुपा लें। Why was David so alarmed when God hid his face? क्यों दाऊद इतना चौंक गया कि जब परमेश्वर ने अपने चेहरे को छुपा लिए? God hid his face because of Israel's evil deeds, caused him such grief that he must turn away to weep. परमेश्वर ने मुंह को इसलिए छुपा लिया क्योंकि इस्राएल के दुष्ट कामों के वजह से, क्योंकि वो परमेश्वर इतना दुखी हुए कि वो अपने मुंह को फेर लिए। You may say right now, God does not weep. He is all powerful, all knowing, awesome God who does not do that. हम और आप कह सकते हैं परमेश्वर दुखी होने वाला परमेश्वर नहीं है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सारे कार्य करने के लिए सामर्थ है करके हम सोच सकते हैं। Wrong. If we were made in the image of God and we have feelings and are subject to sadness and grief, therefore God is too. ये गलत है। अगर हम और आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, तो अगर हमारे अंदर भी भावनाएं हैं, तो परमेश्वर के अंदर भी ऐसा ही भावना है जिन चीजों को देखकर दुखी हो सकते हैं। Let's turn to the Gospel of John chapter 11 and read verse 33 to 35. आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 33 से लेकर 35वें पद तक हम पढ़ें। When Jesus saw her crying, and the Jews who had come with her crying, he was angry in his spirit and deeply moved. Where have you put him? He asked. Lord, they told him, come and see. Jesus wept. जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उसे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। Jesus had a good friend in Lazarus. और यीशु का एक अच्छा दोस्त था जिसका नाम लाजर है। Jesus shared sorrow over the death of his friend. यीशु अपने दोस्त के मृत्यु के वजह से दुखी हुए। My relationship with God deepened when I began to realize that, hey, we can hurt the heart of God through our actions. मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ तब गहरा हुआ जब मैं ये एहसास किया कि मैं परमेश्वर को चोट पहुंचा सकता हूं। Right there, the thought was a game changer in my life. और वहीं पर मेरा विचार परमेश्वर में बदलने लग गया। I could hurt the heart of God through my actions. मेरे क्रियाओं के द्वारा मैं परमेश्वर के हृदय को चोट पहुंचा सकता हूं। The evil that Israel did
was that they turned their hearts to other gods. जो दुष्ट काम इजरायलियों ने किया था कि वे अपने हृदय को दूसरे देवी देवताओं की ओर फेर दिए। It was like saying the God that we serve was not good enough for Israel. और इस प्रकार है ये कहना कि जिस परमेश्वर की अब इजराइल सेवा कर रहे हैं वो इतना काफी नहीं है कि इसराइलियों को आशीष दें या बचा सकें। So they committed spiritual adultery and gave themselves to other gods to meet their needs. अब उन्होंने आत्मिक व्यभिचार किया कि वो अपने आप को दूसरे देवताओं के लिए दे दिए। In meeting our needs, we tend to find another source if God does not comply to our request. हम अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे स्रोतों को ढूंढते हैं जब हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिए। I will repeat the statement again. मैं इस वाक्य को फिर से दोहराता हूँ। In meeting our needs, we tend to find another source if God does not comply to our request. हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए हम दूसरे स्रोतों को ढूंढते हैं कि जब लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिए हैं। How about waiting upon God for the answer? बल्कि कैसा होगा कि हम परमेश्वर के उत्तर के लिए इंतजार करें। Let us not be quick to give up from hearing from God. परमेश्वर के सुनने के लिए हम जल्दी से हार ना मानें। God hid his face when he knew Israel did not want him. परमेश्वर ने अपने मुंह को छुपा लिया क्योंकि उन्होंने जान लिया कि इस्राएली परमेश्वर को नहीं चाहते हैं। This is the action that most of us cannot comprehend that is possible from our God. और यही एक बात है जो हम अपने आप में कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे परमेश्वर ऐसे कर सकते हैं। David knew what it is to have the presence of God, and when that presence is missing, David was terrified. दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर की उपस्थिति होना क्या होता है, तो इसीलिए जब वो उपस्थिति ना दिखाई दें तो वो बहुत ही घबराया जाता है। David straight away came searching for God. David realized how important it is to have the presence of God in his life. दाऊद परमेश्वर को ढूंढते हुए आया क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। I want us all to observe and watch the actions of one man, David. मैं चाहता हूं कि हम सब जो है एक व्यक्ति दाऊद उसकी क्रियाओं को और उसकी बातों पर हम ध्यान दें। David loved God with all of his heart. दाऊद अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम रखता था। How much of that feeling is in us right now? ये भावनाएं हमारे जीवन में कितना हद तक है। My dear brothers and sisters, we have come to the end of this message. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस संदेश के अंत में आप पहुंचे हैं। And I want to encourage everyone watching and hearing this message. हर एक जो संदेश को देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन सबको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं। Watch how God is fulfilling his promises. जागते रहें ये देखने के लिए कि परमेश्वर कैसा अपने वायदे को पूरा करते हैं। If you be consistent in doing so, ऐसे करने में आप अगर तत्पर रहेंगे, you will know what God's plan is for you. आप जानने लग जाएंगे परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है। Once again, thank you for watching this message. Until we see you again. एक और बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं संदेश को देखने के लिए। अगली बार मिलते तक God bless you all. Amen. परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन।